Welcome back to the channel, guys. I'm back with another video on Ielts reading, and this time we will be covering general training reading. And in this video, our main focus will be true, false, not given. And in that, to be more precise, we will be focusing on what is the main difference and how to figure out whether the answer is false or not given. So let's move on to the actual part of this video. Need to do first is that we have to read the question, and after reading the question we have to make them in fragments. like हमने उस क्वेश्चन को फ्रैगमेंट्स में तोड़ देना है. बेसिकली वो दो फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं, तीन फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं. यही टेक्निक है, दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड द आंसर. क्योंकि यहाँ पे हमें जो फॉल्स और नॉट गिवन में कंफ्यूजन होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है. So let's do that first, and then we will be reading the paragraph and finding the answer. So let's start. So guys, जैसे 8 नंबर क्वेश्चन है, द वाटर पेनिट्रेशन एक फ्रैगमेंट हो गया क्वेश्चन का. in some flats will be the second part of the question is being treated as an emergency. भी बहुत ही प्रायोरिटी के हिसाब से उसको टैकल किया जा रहा है. ऐसे हमने फ्रैगमेंट्स में तोड़ लेना है. जैसे 9th क्वेश्चन है, द साउदर्न वॉल will undergo, this is the second part, a permanent repair this year. भी permanently उसको रिपेयर किया जाएगा. Some people failed to pay attention to wet painting signs. Like this you have to figure it out, like what could be the parts which will be deciding answer. Air fresheners caused some damage in the past. Residents are responsible for removing their own rubbish from the building. Some residents have reported problems with noisy neighborhoods. DIY can take place outside the stated hours if your neighbors agree. So this is how you have to break down all the questions, and this will be the best way to solve it. You will definitely see improvement. Give it a try. So let's start off with the first question. So okay, first question क्या कह रहा है, the water penetration in some flats is being treated as an emergency. भी वो जो water penetration है, मतलब वाटर के अंदर दाखिल हो जाना, वो बहुत लार्ज स्केल पे किया जा रहा है. और कहाँ पे किया जा रहा है? सम फ्लैट्स. देखो, तीन चीजें तो हमने फाइंड कर ली, पर उसमें जो सम फ्लैट है वो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है. अगर सम फ्लैट्स में होगा तो ट्रू, अगर नहीं होगा तो फॉल्स. अगर इन तीनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी ना, कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रेजेंट होगी, तो नॉट गिवन होगा. ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व फॉल्स एंड नॉट गिवन. सो पहले का नाम जैसे वाटर पेनिट्रेशन है, इसको एज क्विक एज पॉसिबल हमने करने की कोशिश करनी है. एज अ रिजल्ट ऑफ द recent heavy rain, water has seeped through the walls of some flats आ गए यहाँ पे, and reached a critical level. बहुत ही जो critical level हो गया उसका. a decision has been taken to deal with this immediately. उन्होंने बोला डिसीजन टेक कर लिया गया है उसको डील करने के लिए इमीडिएटली. कहाँ पे? सम फ्लैट्स में वाटर आ गया, तो मतलब हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है. तीन इंफॉर्मेशन थी, सम फ्लैट मिल गए हैं, डिसीजन ले लिया गया है, एंड इमीडिएटली लिया गया है, मतलब इमरजेंसी बेसिस पे लिया गया है, एंड वाटर पेनिट्रेशन सीप थ्रू पे आ गया. ठीक है, सो हमारी तीनों की तीनों इंफॉर्मेशन मैच हो गई हैं, तो हमारा आंसर क्या आ गया है? ट्रू. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन, द साउदर्न वॉल विल अंडरगो अ परमानेंट रिपेयर दिस ईयर. अगर हमें तीनों की तीनों इंफॉर्मेशन मिल गई, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स और नॉट गिवन. तो उसके आगे ही अगर देखें तो देखो यहाँ पे साउदर्न वॉल लिखा हुआ है, तो मतलब आंसर यहीं कहीं पे होगा. स्कैप द साउदर्न वॉल एंड द ब्रिक वुड वर्क देयर विल बी सील्ड टेम्परेरीली. और टेम्परेरीली सील किया जाएगा, परमानेंटली नहीं. मतलब कॉन्ट्राडिक्शन तो यहाँ पे बन गई. with the waterproof covering to prevent any further water getting in until the major building work take place next year. यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन पूरी कंफर्म होगी that the thing is not similar, what the question is asking for is different. and जैसे यहाँ पे अगर क्वेश्चन को देखें तो southern wall will undergo a permanent repair, नहीं है permanent repair, they are saying that it will go a temporary repair. So the information is contradicting, that is why it's false. Okay, so let's move on to the next question.
सो अगर हम लोग 10th क्वेश्चन देखें, सम पीपल हैव फेल्ड टू पे अटेंशन टू वेट पेंट साइंस। तो उन्होंने बोला कुछ लोग जो अटेंशन देने पे नहीं ध्यान दे पाए, किसके ऊपर, वेट पेंट साइन पे। अगर नहीं दे पाए तो ट्रू, अगर वो लोग दे पाए क्लियरली ध्यान तो ट्रू, फॉल्स। एंड अगर उन कुछ भी ना बताया हुआ है या फिर इन तीनों में से कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग हुई तो हमारा क्या आंसर हो गया, नॉट गिवन। लेट्स लुक फॉर वेट पेंटिंग साइन बिकॉज वो यहाँ पे कीवर्ड है। यहाँ पे पेंट इज वेट का आ गया है, हम इसको शुरू से रीड करते हैं। द कॉरिडोर वॉल्स इनसाइड द बिल्डिंग आर डेकोरेटेड एवरी 3 years, इसका कोई लिंक नहीं है। प्लीज लुक आउट फॉर साइंस इंडिकेटिंग वेयर द पेंट इज वेट। इफ यू हैव चिल्ड्रन मेक श्योर दे कीप अवे फ्रॉम द वॉल्स। DH cannot be held responsible for any spoiled clothing। तो यहाँ पे देखो पेंट इज वेट का मेंशन तो हुआ है पर कुछ अलग मेंशन नहीं हुआ है। फेल्ड अटेंशन का मेंशन नहीं हुआ है, सम पीपल का कुछ नहीं मेंशन हुआ है, जस्ट पेंट का मेंशन हुआ है। तो क्योंकि कई बार लोग ये समझते हैं भी बात हुई है पर अलग बात हुई, तो फॉल्स लगा देते हैं। सो कीप दिस इन माइंड, जब हम लोग इसको इस तरीके से करते हैं तो व्हाट वी हैव इज दैट वी गेट टू नो दैट भी हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन तो मिली नहीं, दैट इज व्हाई इट्स गोइंग टू बी नॉट गिवन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एयर फ्रेशनर्स हैव कॉज्ड सम डैमेज इन द पास्ट। यहाँ पे एयर फ्रेशनर वाला मेन आ गया है। वी हैव रिसीव्ड अ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट द स्मेल इन द कॉरिडोर्स। DH इंस्टॉल्ड एयर फ्रेशनर सम years ago, however they were costly and the liquid in this their spray stained the carpet। so मतलब उन्होंने प्रॉब्लम कॉज की है, ऑब्वियसली उन्होंने बोला पहले हमने किया हुआ है, किया था एक बार तो उसका कॉस्टली था। एक तो लिक्विड जो स्प्रे करता था स्ट्रेन करता था कारपेट्स के, मतलब दाग लगा देता था। तो एयर फ्रेशनर सही आ गई इन्फॉर्मेशन। कॉज्ड सम डैमेज, डेफिनेटली उन्होंने किया, उन्होंने स्टेन्स लगा दिए। कहाँ पे, पास्ट में। तो सेम लाइक फॉर होल इन्फॉर्मेशन वी गॉट इट, सो द आंसर फॉर दिस इज ट्रू। मूविंग ऑन टू 12th, रेजिडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग देयर ओन रबिश फ्रॉम द बिल्डिंग। उसके आगे ही अगर देखें तो रबिश का क्योंकि जिक्र हुआ है वहां पे, एट प्रेजेंट वी वुड प्रेफर टू आस्क रेजिडेंट्स टू मेक श्योर स्मेल कैन नॉट एस्केप फ्रॉम फ्रंट डोर एंड टू सील रबिश बैग्स व्हेन दे पुट देम इन द कॉरिडोर फॉर कलेक्शन एंड डिस्पोजल फॉर द केयर टेकर। सी, वहां पे उन्होंने बोला भी उनको खुद बाहर रख के आना है, तो नहीं, उन्होंने बोला था कॉरिडोर में रख देना है और डिस्पोजल फॉर द केयर टेकर, भी केयर टेकर लेकर जाएगा उसको। एंड सील करके उन्होंने कॉरिडोर में रखना है, नॉट टू कीप इट आउट ऑफ द building, what we say. So some residents are responsible removing their own rubbish, no they are not, so this is going to be contradictory। हमें information bit by bit तीनों मिली है but it's not what we are looking for, so this is going to be false। some residents have reported problems with noisy neighborhood, यहाँ पे नॉइज की बात है। while most leaseholders observe the regulation on noise, we have received complaints from others about out of our drilling। so basically नॉइज की प्रॉब्लम आई है ना, तो उनको सेम बात है, तो ट्रू आ गया आंसर। DIY can take place outside the stated hours if your neighbors agree। यहाँ पे अगर देखें तो इफ यू आर प्लानिंग टू अंडरटेक सच वर्क ड्यूरिंग दीज आवर्स का मतलब जो ऊपर आवर्स बताए हैं, it is still polite to inform your neighbors of this so that they can make any necessary arrangements। तो मतलब यहाँ पे उसके कॉन्ट्राडिक्टरी बात हुई है। यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे कहा है भी हम लोग उसके अलावा वाले टाइम में कर सकते हैं, पर DIY कैन टेक प्लेस आउटसाइड द स्टेटेड आर नहीं, उन्होंने बोला इनसाइड द स्टेटेड आर, मतलब जो टाइम डेजिग्नेट किया गया उसके अंदर अंदर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। so this is going to be contradiction and this is going to be false। so this is how the answers for true false not given can be easily solved, and a lot of videos coming up on this channel on different topics। if you have any worry regarding any of the paragraph or any question type, you can mention it in the comment section, I will love to make video on that। Thanks for watching, and if you need any kind of help you can join our telegram group, we are always there to guide you through your IELTS journey।